जय हिंद डिफेंस एस्पायरेंट्स, आई विवेक पांडे वेलकम बैक इन टारगेट डिफेंस फोर्सेज। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में अभिषेक सिंह, हु रिसेंटली गॉट रिकमेंडेड फॉर एनडीए 147, हैड शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस। इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि अभिषेक ने अपनी वैल्यूएबल टिप्स भी शेयर की हैं इसमें। Before starting the video, let me tell you one more thing about Abhishek. Actually, he was a true gem, we can say, क्योंकि वो totally dedicated थे to become an officer. Actually, he got 2 time conference out. 2 बार conference out होने के बाद he contacted Target Defense Forces. Then he had a direct interaction with me. That time he told me कि सर मैं 2 बार conference out हो चुका हूँ. This is my last SSB and I want to get recommended. I'm not able to find out कि मैं lag कहाँ कर रहा हूँ. Then he came here. He told me that सर मैं मेहनत करने को पूरा तैयार हूँ. It was his commitment, so that's why it helped him out to get recommended. तो अगर आप truly dedicated candidate हैं, you can also become like Abhishek and you can also get recommended in very next attempt. So must watch the video till the end, you'll surely get benefited. And friends, अगर आप भी Target Defense Forces daily practice platform का part बनना चाहते हैं, you can provide your details in the provided WhatsApp number which is getting displayed in the screen right now. And also go through the links which is provided in the I button right now. You will get to know how classes are conducted over here, and there is a valuable feedback of other candidates too. So here comes the experience of Abhishek. Hello everyone, my name is Abhishek and I recently got recommended for my NDA 147 entry in my third and final attempt. And before that, I have been a 2 times repeater. Both times I got a conference out for my NDA entry only. And if I talk about that, where the motivation came inside me regarding joining the NDA. So as a cadet of Rashtriya Military School Ajmer, from 8th or 9th onwards, I have decided that I will join NDA one day. And the motivation I used to get from my school environment. And after that, I would say that at the later stage of my 11th and 12th, that I have decided that I'll clear my written exam and will prepare for my SSB and soon will crack the NDA exam. After that, I got failure in my very first attempt, and because I was not able to clear my written exam, that was for NDA 144 entry. And later that I have realized that I have to work much harder for that. And regarding my NDA 145 entry and 146 exams were conducted at the same point of time. So I took that thing as an advantage, and I have decided that if I'll clear one exam, I'll be getting 2 SSBs. So I at that time put more efforts, and by virtue of that hard work, I was able to clear my written exams. But unfortunately, because of some mistakes in my SSB, both for NDA 145 and 146, I was not able to clear that. And I lost that opportunity also. And so if I talk about my mistakes in SSB, which I did in my early attempts, both for my NDA 145 and NDA 146. So regarding my first attempt, I would say that my mistakes were that I would say like I was comparing myself to others. So I would like to say to everyone that whoever is preparing for the SSB, I would say that do prepare well, but whenever you are going for the SSB, but do not compare yourself with others, because if you start comparing, you will start losing your confidence. And that was my major mistake in my first attempt. And after that, I also wrote down some of my mistakes when I came from my first SSB. That major one was this one was only that I was comparing myself with others. Second thing was that whatever things we are telling the assessor in my interview, we should have enough information about that thing. Like each and every Wikipedia we should have regarding the PIQ form. Whatever thing we are writing in PIQ, we should have a Wikipedia idea of that. And not only this, I would say the GTO also matters, because in GTO ये चीज़ होती है दिमाग में कि हाँ स्ट्रक्चर्स आएंगे कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होता, वहाँ पे नहीं आते आइडियाज़
किसी किसी को होता है कि हाँ कि भाई आइडियाज आ जाते हैं, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर प्रिपरेशन के साथ नहीं गए हो कि जीटीओ के आइडियाज वगैरह, जैसे जो कमांड टास्क जो पीजीटी एचजीटी वगैरह होता है, अगर उसमें प्रैक्टिस नहीं करके गए तो कोई फायदा नहीं है. सो this was my mistakes in my first attempt. So if I talk about my mistakes in my second attempt, so I would say that one thing I did at that point of time ki I never repeated my mistakes again. And I used to write one thing in my WAT also, whenever a word fool used to flash, that a fool is the one who repeats his own mistake again. So never be a fool. कभी अपनी mistakes repeat मत करना. After that, in second attempt, I would say that my major mistake was like I was thinking that जो mistakes पहले हुई हैं अब वो तो होंगी नहीं, but ठीक है वो सब मैंने repeat नहीं की. But क्या हुआ कि the accessor सब put it some pressure on me regarding my earlier attempts कि भाई ऐसा क्यों नहीं हुआ. So that time a little bit got nervous. एंड सम मैथ्स वगैरह क्वेश्चंस थे जिसमें मैं थोड़ा फंसता था. वो मेरे से पहले अटेम्प्ट में नहीं पूछे थे, बट वो सेकंड अटेम्प्ट में पूछ लिए, तो वो थोड़ा उधर दिक्कत हो गई थी. बट कोई नहीं, मैनी अदर मिस्टेक्स वर ऑल्सो देयर, एंड बट माई मेजर मिस्टेक्स वर दिस ओनली दैट इन माई इंटरव्यू आई गॉट लिटिल बिट नर्वस, एंड आई वुड से दैट that nervousness impacted my other questions also and impacted my other task also. Like in GTO, I would say that thing was also committed because कि उस चीज की वजह से जो मेरे साथ पहले हुआ, मैंने उस चीज को दिमाग में रिवॉल्व करते रहा कि यार मेरे से वो मिस्टेक हो गई है, तो वो मेरे दिमाग में वही चीजें घूम रही थी बाद में. सो नेवर कि मतलब कि अगर ठीक है अगर कोई टास्क अच्छा नहीं हो तो उस चीज को भूल जाओ, आगे कंटिन्यू करो, उसका कोई फायदा नहीं है बात दिमाग में रखने का. तो उसके बाद आई वेंट फॉर माई रिटर्न. मेरे को लगा था कि मैं रिटर्न नहीं क्लियर कर पाऊंगा, बट आफ्टर दैट थोड़ा किया, खुद गेन किया कि हाँ भाई करना है, रिटर्न करना है. तो आई वेंट फॉर माई इंडिया 147 रिटर्न एग्जाम एंड आई क्लियर दैट. आफ्टर दैट आई थिंक दैट यार कोचिंग वगैरह से मेरे को कोई फायदा तो नहीं होगा, बिकॉज इन माई बिफोर माई फर्स्ट अटेम्प्ट आई वेंट टू दी ऑलिव ग्रीन्स. तो हाँ अच्छा खासा मेरे को आइडिया लग गया था, बट थोड़ा और फिर मेरे को एक्सपीरियंस था वो मेरे को पिछले 2 SSB से आ गया था. तो इस बार मैंने सोचा कि उस टाइम थोड़ा कोविड की सेकंड वेव भी आ गई थी, तो मैंने सोचा कि घर पे बैठ के प्रिपेयर करता हूँ. बट आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज दैट कि नहीं भाई थोड़ा तो मतलब अगर थोड़ा ग्रुप नहीं होगा, इंटरेक्शंस वगैरह नहीं होंगे, मॉक इंटरव्यूज वगैरह नहीं होंगे, तो ऐसे हेल्प नहीं मिलने वाली. Then one day I was searching on YouTube regarding some lecturate and I found about the target defense forces. After that I contacted to Vivek Pandey sir and he gave me confidence, like I talked to him and he gave me confidence like कि हाँ भाई मैंने ऐसे बताया सर, ऐसे प्रॉब्लम्स हुई थी मेरे से पिछले अटेम्प्ट्स में. एंड सर ने मेरे से एक बात पूछी थी कि विल यू गिव योर 100% इन दिस like target defense forces course. तो at that time I said that sir I will give 110%. तो सर की एक्सपेक्टेशंस यही होती है कि हाँ सर अपने एफर्ट डालना चाहते हैं, बट द सेम एफर्ट्स ही इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस ऑल्सो. सो अगर इफ वी आर ज्वाइनिंग दैट ग्रुप, सो आई वुड से दैट गिव यू 100%. कभी एक्सक्यूजेस तो होते हैं सबके पास कि हाँ यार आज ये लेक्चरेट है, छोड़ो आज नहीं देते, बट नहीं करना चाहिए, हमेशा देने चाहिए. मैं भी कभी कभी हो जाता था, बट रियलाइज होता था कि नहीं यार ये सब चीजें गलत है, तो मैंने वो सब फिर बाद में रिपीट नहीं किया. और लास्ट मोमेंट पे आते आते कि मतलब कि हाँ स्टार्टिंग में थोड़ा चलता है, बट बाद में मैं सीरियस हो गया था उस चीज को लेके. आफ्टर दैट स्क्रीनिंग PPDT सेशंस एंड द मॉक इंटरव्यू सेशन हेल्प मी अलॉट. जैसे मैंने बताया था मेरे को थोड़े मैथ्स क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने वही चीजें बताई सर को कि मेरे को थोड़ा सर इस चीज पे वर्क करना है. आफ्टर दैट मैंने नॉलेज, जो मैंने कहा था कि जो नॉलेज वर्क वाला पार्ट बहुत मैटर करता है, क्योंकि जितनी ज्यादा नॉलेज होगी उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा. तो वही सब चीजें थी. तो एक तरीके से मेरे को एक्सपीरियंस मिल रखा था, प्लस मैंने अपनी मिस्टेक्स में इसको पता थी, और मेरे को ये भी पता था आगे मेरे को रिपीट्स अपनी मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी है. तो वो सब चीजों को मैंने अपने दिमाग में रखा. तो जब भी कभी भी मॉक इंटरव्यू सेशन लेते थे, कभी PPDT सेशंस लेते थे, तो मेरे को आइडिया लग जाता था कि हाँ मैं थोड़ा इंप्रूव कर रहा हूँ. और जब इंप्रूव करने लग जाते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस में आने लग जाता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली चीज आने लग जाती है.
तो उसी चीज़ के साथ मैं वर्क करता रहा। एंड लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट माई रीसेंट एक्सपीरियंस when I went for my India 147, so it was a different kind of experience for me because I have realized that now I am fully prepared and मेरे को सब पता था कि हाँ मेरे को ये सब चीज़ें नहीं करनी है एंड आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर माई अपकमिंग टास्क ऑल्सो। सो मेरे को उस चीज़ का काफ़ी बेनिफिट मिला, लाइक प्री सेशन वट एवर थिंग्स आई हैव डन इन द TDF दैट हेल्प मी अ लॉट ओवर देयर बिकॉज वेन एवर आई वॉज स्पीकिंग इन दैट GD others are listening to me because मेरा ग्रुप था 16 का एंड इट इज़ नॉट ईजी कि एक बंदा बोल रहा हो पूरे 16 बाकी के 15 जितने भी बंदे हैं सब सुन रहे हो। बट प्रैक्टिस इतनी हो गई थी कि वो फ्लुएंसी वगैरह आ गई थी, वो अटेंशन गैदरिंग वाली चीज़ आ गई थी कि जब मैं व्हेन आई वाज स्पीकिंग अदर्स वाज लिसनिंग एंड मैंने आई गेव ओनली 2-3 पॉइंट्स एंड दैट 2-3 पॉइंट्स वाज एडेड इन द कॉमन स्टोरी ऑल्सो। सो मेरे को उस चीज़ का फायदा हुआ वहाँ पे। एंड like psych test I have practiced, I would say sir that whatever the test the sir is giving to us on Sunday, please do that। अगर मतलब कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 घंटे लगते हैं, सो वी कैन टेक दैट टाइम। कभी कभी ठीक है चलता है, अगर नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, बट प्लीज डू एफर्ट्स, डू मेक एन एफर्ट टू अटेम्प्ट दैट टेस्ट बिकॉज अभी इतनी इंपॉर्टेंस पता नहीं चलती बट बाद में लेटर ऑन रियलाइज होता है, क्योंकि बाद में वहां जाके जब साइकोलॉजी टेस्ट देने लगते हैं ना तो वहां सब नॉर्मली लगता है कि हाँ यार ये सब तो पता ही है, ये सब तो हो ही रहा है, तो वहां इतना सब कुछ नया नहीं लगता है। और जब तक नया नहीं लगेगा उतना ही ज्यादा बेटर है फिर। और व्हेन आई कम टू माय इंटरव्यू पार्ट, तो इंटरव्यू वाज लाइक स्मूथ। the sir whatever question he was asking was no new to me because जो मैंने क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किए थे वही सब क्वेश्चन सर ने पूछे। और बल्कि मेरे को ऐसा लगा कि बस यही होता है इंटरव्यू, मतलब कि पहले जो मैंने इंटरव्यू देखे थे और ये वाला इंटरव्यू देखा तो मतलब इट वाज मच बेटर। एंड द प्रेसिडेंट टुक माई इंटरव्यू एंड आई रियलाइज कि हाँ प्रेसिडेंट की साइड से मैं रिकमेंड हो जाऊंगा, और तो उस चीज का एक कॉन्फिडेंस भी मिला मेरे को एंड दैट हेल्प इन माई GTO में भी जो GD सेशंस वगैरह होते थे GD, तो उसमें मेरे को काफी फायदा मिला। जो चीज आ गई थी जो PPDT से कि हाँ जब तुम बोल रहे हो तो बाकी सुन रहे हो, तो वो चीज वहां पे भी हेल्प मिली मेरे को। बाकी ये जो PGT ये सब होते हैं इनके लिए थोड़ी मेरे को पहले से भी पता था, जो मैंने पहले कोचिंग वगैरह की थी और पिछले 2 SSB एक्सपीरियंस से, तो वहां पे थोड़ी हेल्प मिली। सो आई वुड से दैट इन लास्ट की कभी भी मतलब नेवर लूज होप एंड बिकॉज when I went for my second attempt for my SSB and I was not recommended, so I was thinking that यार मेरा SSB नेक्स्ट वाला तो क्लियर हो ही नहीं पाएगा। तो आई वुड से दैट कभी ऐसा मत सोचना कि नेवर लूज होप बिकॉज in my school my house motto was there that fight to the last and I always used to keep that thing in mind कि यार अभी मौका है तो अभी कर लेता हूँ, बाद में फिर रिग्रेट ही रह जाएगा। तो इसी के साथ फिर मैंने अपनी NDA 147 के रिटर्न के लिए वो प्रैक्टिस करा था। तो तब मैं अगर ऐसा नहीं सोचता तो मे बी ये सब नहीं हो पाता आज। सो नेवर लूज होप एंड एट लास्ट आई वुड बी सेइंग दैट whosoever is preparing for the SSB, please everybody give it time to yourself, work upon yourself, whatever things you are doing in your surrounding, please be aware of that, क्योंकि जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी उतनी ज्यादा हेल्प होगी। क्योंकि जो छोटे मोटे काम हम जो अपनी लाइफ में करते हैं आजकल डेली पार्ट में, वही सब चीजें SSB में अगर हमें उन सब चीजों के बारे में पता होगा तो बहुत हेल्प करती है। उसी की हम स्टोरी बना सकते हैं, उसी चीज को हम अपने इंटरव्यू में भी दिखा सकते हैं, उसी चीज से हम GD में भी पॉइंट दे सकते हैं, तो वो सब बहुत हेल्प करेगी। सो आई रेस्ट माई वीडियो ओवर हियर एंड जय हिंद टू ऑल, थैंक यू।